એ આગળના દિવસોમાં પણ મળતો રહે એવી અપેક્ષા રાખું. કોઈ પણ સિંગલ પાર્ટીને 272 પ્લસ બેઠકો મળી હતી. જે પણ બેઠકો છે ગઠબંધન ભારતીય જનતા પાર્ટીની વાત કરીએ તો એ 239 થી આગળ હતી. કોંગ્રેસ 99 બેઠકથી આગળ. તમે માનો છો કે ઇન્ડિયા ગઠબંધનની સરકાર બની શકે? હું આના માટે અત્યારે ટિપ્પણી નહીં કરું, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે એકહથ્થું શાસન રહ્યું 10 વર્ષ સુધી, અને એમણે એમના તમામ સાથી પક્ષો સાથે જે વ્યવહાર કર્યો છે, એક વખતમાં જે સૌથી ઓલ્ડેસ્ટ એલાયન્સ કહેવાય શિવસેના, એક વખતનું ઓલ્ડેસ્ટ એલાયન્સ એમનું અકાલી દળ, આમના સાથે જે વ્યવહાર કર્યો એમણે, આ વ્યવહારના કારણે મને નથી લાગતું કે એનડીએમાં સાથે રહેલા લોકો હવે જ્યારે સંજોગ એવા દેખાય કે એમના વગર બીજી સરકાર બની શકે એમ છે, તો ભારતીય જનતા પાર્ટીને સ્વીકારે એવું મને નથી લાગતું. પણ આખરે ઇન્ડિયા ગઠબંધનના નેતાઓ અને સમય નક્કી કરશે. અત્યારના તબક્કે મારા તરફથી આ અંગે કોઈ નિવેદન કરવું એ વ્યાજબી નથી. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી ન્યૂઝ અને જનાદેશ 2024 સાથે હું છું જિજ્ઞાસા. લોકસભા ચૂંટણીનું આજે પરિણામ સામે આવી રહ્યું છે. ધીરે ધીરે વીટીવી ન્યૂઝ પર આપ તમામ અપડેટ સાથે પરિણામો જોઈ રહ્યા છો. મહત્વનું છે કે અત્યાર સુધી ગુજરાતની વાત કરીએ તો એક બેઠક બનાસકાંઠા બેઠક એવી છે કે જ્યાં કોંગ્રેસે કબજો કરી લીધો છે અને ગેનીબેનનો ભવ્ય વિજય થયો છે. આ બેઠક પર વહેલી સવારથી જે પ્રકારે વલણ સામે આવ્યા ત્યારે કોંગ્રેસ મજબૂત સ્થિતિમાં હતી. ન માત્ર બનાસકાંઠા પરંતુ પાટણ બેઠક પર પણ કોંગ્રેસ મજબૂત હતી, પરંતુ પાટણ બેઠક પર બીજેપીનો ભવ્ય વિજય થયો છે. એકમાત્ર બેઠક અત્યારે ગુજરાતની બનાસકાંઠા બેઠક કોંગ્રેસે કબજે કરી છે. 10 વર્ષ બાદ કોંગ્રેસનું ગુજરાતમાં ખાતું ખુલ્યું છે. દેશની વાત કરીએ તો એનડીએ અત્યારે 296 સીટ પર આગળ છે, તો ઇન્ડિયા ગઠબંધન પણ 230 સીટ પર આગળ ચાલી રહી છે. સવારથી જ જે પરિણામો સામે આવી રહ્યા છે, મહત્વનું છે કે એક બેઠક પર આ વખતે ભાજપે ગુમાવવી પડી છે. 26 સીટ જીતવાનો દાવો ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી રહી હતી. જો કે બનાસકાંઠા સીટ આ વખતે ભાજપે ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે. જબરજસ્ત ટક્કર આ વખતે પાટણ બેઠક પર પણ આપી હતી. ઓવરઓલ જોવા જઈએ તો ખૂબ જ ઝટકો ભારતીય જનતા પાર્ટીને રહ્યો છે, કારણ કે દેશમાં પણ જે 400 પારનો નારો લગાવવામાં આવ્યો હતો ત્યાં હજુ એનડીએ 296 સીટ પર અત્યારે જોવા મળી રહી છે. અને ગુજરાત કોંગ્रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस કરવામાં આવી રહી છે, સાંભળીએ. कांग्रेस पार्टी में विधायक दल के उपनेता शैलेश भाई, हमारे सीनियर साथी मीडिया के इंचार्ज भाई मनीष भाई दोषी, भाई बिमल भाई शाह, हिमांशु भाई, पार्थिव भाई और प्रेस और मीडिया के साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं. मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे प्यारे गुजरात के आवाम का कि हमें प्यार, समर्थन और आशीर्वाद जबरदस्त मिला. देश की जनता का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन को, हमारे अलायंस को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया. और भाजपा का जो अहंकार था, उस अहंकार को देश की और गुजरात की जनता ने तोड़ा है. अब की बार 400 के पार, ये अहंकार था. कांग्रेस मुक्त भारत वो अहंकार था, और अहंकार तो जिसकी सोने की नगरी थी उसका भी नहीं टिका था. एग्जिट पोल माने एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया हो, उस तरह से एक माहौल बना दिया था.
पर मैनेज दिखाई गई बातों से सच्चाई बदल नहीं सकती है। गुजरात में कहा था कांग्रेस को तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, लड़ेगी कहां से कांग्रेस पार्टी। फिर कहने लगे देखना ने वो खींच लेंगे। फिर कहने लगे हर सीट 5-5 लाख से जीत जाएंगे। मुझे खुशी है कि सिर्फ इक्का दुक्का सीट को छोड़ के जो बातें करते थे ऐसी लीड कहीं नहीं रही। मैं स्वीकार करता हूं 2014 और 2019 में गुजरात में हमें कोई सीट नहीं मिली थी। इस बार कह रहे थे हैट्रिक करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं बनासकांठा के मतदाताओं का कि बनास की बहन को, हमारी बहन को देश की पार्लियामेंट की बहन बनाई है और वहां हमारी आवाज गूंजेगी। इंग्लिश में कहा जाता है कि कोई भी कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन में इक्वल लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए भी ये कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तो कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, कोई बड़ा नेता नहीं होता है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड, समानता मिलती है। भाजपा के सरकार ने हमारे लोकतंत्र को कलंकित किया। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल ही निकाल दिया और प्रधानमंत्री और एक मंत्री दोनों से बहुमत हो जाए ऐसी चीज की। उसके बाद फ्लिम्जी ग्राउंड, जो कोई ग्राउंड ही नहीं है। 2017-18 में कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस पार्टी को 14,56,000 क्यों दिए कैश में करके हमारे 11 अकाउंट फ्रीज कर दिए, अकाउंट से पैसे निकाल दिए, हमारी सारी एफडीज फ्रीज कर दी और भाजपा मानने लगी कि बिना पैसे से चुनाव कैसे लड़ेंगे। हमारे साथियों को झारखंड में हमारे इंडिया अलायंस के, वहां हमारी मिलीजुली सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी नेता को जेल में डाला। उसके बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री साथी पार्टियों को भी परेशान किया, ये मानते हुए कि अब कहां से चुनाव लड़ेंगे, और कहने लगे 400 पार 400 पार। और प्रधानमंत्री जी भी अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करते रहे, गाली गलौज तक उतर आए। सलाम करता हूं गुजरात की जनता को, देश की जनता को कि इन अहंकार को तोड़ा। पैसे नहीं थे तो हमारे आवाम ने, हमारे प्यारे लोगों ने हमारे कैंडिडेट्स को पैसे भी दिए, आशीर्वाद भी दिया, समर्थन भी दिया। कुछ गिने चुने नेता को भाजपा डरा गई, खरीद के ले गई, पर मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। मुश्किल के वक्त में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता डटा रहा बूथ पे, ग्रास रूट पे, और भाजपा जो 5-5 लाख से गुजरात में जीतने की बात करती थी उसका काफी ग्राफ डाउन हो गया। कहते थे सभी जीत लेंगे, एक बनासकांठा की हमारी बहन जीती है, ये लोकतंत्र की शुरुआत है। ये सच्चाई आगे आने वाले दिनों में और मजबूती देगी। मेरे सभी प्रत्याशियों को धन्यवाद करता हूं कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, हर मुश्किल का उन्होंने सामना किया और मजबूती से लड़े हैं। उन सभी मेरे प्रत्याशियों को, क्योंकि कभी कभी लड़ाई में क्या होना है उसकी चिंता नहीं है, मैं सच का झंडा पकड़ के सामने कितनी भी बड़ी ताकत है बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ रहा हूं, वो अगर कोई दिखाया तो हमारे प्रत्याशियों ने दिखाया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आपके कोई सवाल होंगे? इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने की कोई कोशिश की जाए? देखिए, ये क्लियर बहुमत जो भाजपा कहती थी 400 पार और पूरा बहुमत, भाजपा को इस देश की जनता ने क्लियर मैंडेट सरकार बनाने का पूरे बहुमत का नहीं दिया है।
भाजपा के पास 10 साल तक जब पूरा बहुमत रहा तो उन्होंने जो रवैया अपनाया, अपने साथियों जिनके कंधों पे सीटें आई थी, उन साथियों को बर्बाद करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ओल्डेस्ट अलायंस शिवसेना, क्या किया उनके साथ? पार्टी को तोड़ने की कोशिश, उनके नेताओं को बर्बाद करने की कोशिश। अकाली दल उनका सबसे पुराना अलायंस था, क्या रवैया रखा भाजपा ने उसी अकाली दल के साथ? चंद्राबाबू नायडू जी के साथ क्या कुछ नहीं किया है भाजपा ने। ये वही नीतीश कुमार जी है जिनके लिए अनाप शनाप भाषा, और मोदी जी ने खुद बिहार में जाके कहा था कि इनका डीएनए गड़बड़ है। तो ये भाजपा ने अपने साथियों के साथ किया है। मैं नहीं मानता हूं कि अब इनके ऊपर, इनका पुराना इतिहास देखते हुए देश का कोई भी दल भाजपा पे विश्वास करेगा, ये मुझे नहीं लगता है। मैं इसके लिए, क्योंकि हमारा इंडिया अलायंस है, मैं इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कमेंट करने के लिए मेरी कोई उस लेवल की जिम्मेवारी या नहीं है। मेरा निजी ओपिनियन मैंने जरूर रखा है कि ये जो हकीकत आप सबके सामने है कि भाजपा ने कैसा व्यवहार किया है,